In India, around 250 million children were impacted during the COVID-19 pandemic with the closure of schools. This negatively affected the primary education, especially in the rural parts of the country. A survey conducted across by the School Children's Online and Offline Learning shows that only 4% children in rural India had access to online education. GBTC, Give Back to Community Trust, aims to bridge the educational gap in rural India by supporting underserved students through technological empowerment. This initiative allows children to make and shape our digital future. Here's two groundbreaking projects initiated by GBTC: Project Enable Smart Class and Project Enable Super 60 Plus. The objective of Project Enable Smart Class is to empower rural schools with technology and increase the outreach of students in the community. The Trust provides digital infrastructure to government primary schools to improve student engagement, student learning and retention. मैं ये वादा करता हूँ कि हम सब स्मार्ट क्लास से पढ़ करके एक स्मार्ट बच्चा बनेंगे। थैंक यू जीबीटीसी ट्रस्ट हमको हमारे विद्यालय को स्मार्ट क्लास देने के लिए। जीबीटीसी ट्रस्ट की तरफ से हमारे स्कूल में टीवी लगी है जिससे हम नई नई चीजें सीख सकते हैं। थैंक यू जीबीटीसी ट्रस्ट। थैंक यू जीबीटीसी ट्रस्ट। आपने हमारे विद्यालय को एक स्मार्ट क्लास दिया है जिससे हम बच्चों को अभी तक जो थ्योरेटिकली पढ़ाते थे उसे हम प्रैक्टिकली दिखा पाएंगे, जिससे बच्चे आराम से और आसानी से उस चीज को बहुत ही बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। Project Enable Super 60 Plus. The objective of Project Enable Super 60 Plus is to prepare talented students of economically weaker sections studying in primary schools for entrance exams of Vidya Gyan and Navodaya Vidyalayas through daily online classes in Hindi, mathematics and reasoning. Selected students are provided smartphones by GBTC Trust. We urge many leaders to join our mission to help more children receive quality education. Through your valuable donation of digital devices, we aim to empower the future generation to succeed in an increasingly interconnected world. Only together, we can give back to community. Neela ma'am, please start. Good evening, everyone, and a very warm welcome to all of the educators joining us today. On the behalf of GBTC Trust, we are truly glad to have you all with us for professional development session. Myself, Neelam Mandhyan, and I'm a coordinator of Youth Leadership Development Team, along with that, moderator of this professional development sessions at GBTC. GBTC Trust is a non-profit initiative working to empower underserved learners to become the change makers by bridging educational gaps through digital learning, mentorship, and leadership development. So far, through our work, we have engaged 150 plus teachers, reached over 7,000 plus students, and supported transformation across 55 plus schools. सबसे पहले हम अपनी संस्था जीबीटीसी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। जीबीटीसी ट्रस्ट के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि हमने 2022 में इसका रजिस्ट्रेशन करवाया था इस विजन और इस मिशन के साथ कि शिक्षा और तकनीक के जरिए हम गरीब तबके के बच्चों को उनकी कम्युनिटी को एम्पावर कर सकें। हमारे 3 मुख्य प्रोजेक्ट्स इस समय गतिमान हैं। पहला प्रोजेक्ट स्मार्ट क्लास का, जिसमें लगभग 50 प्लस स्कूल्स में बेसिक शिक्षा परिषद के लगभग 50 प्लस यानी 50 प्लस स्कूल्स में जो है वो स्मार्ट टीवीज प्रोवाइड की गई हैं। साथ ही साथ उनके साथ में इन्वर्टर्स और
अलार्म बेल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। जब भी कभी वहाँ पे बिजली की समस्या होती है तो ये इन्वर्टर्स वर्क करते हैं, एंड साथ साथ अगर कभी भी ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ ऐसी चोरी की संभावना लगती है तो ये अलार्म बेल्स बजने लगते हैं। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है सुपर 60+, जिसमें 5th क्लास के बच्चों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, और साथ ही साथ जो रिनाउंड स्कूल्स हैं अयोध्या के या आसपास के, जिसमें नवोदय भी आता है, सैनिक आते हैं, सैनिक स्कूल्स हैं, आपके अटल आवासीय हैं, और बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें बच्चों को एडमिशन्स के लिए आगे प्रोवाइड किए जाती है, वो फैसिलिटीज हमारी संस्था द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और इनकी जो फाउंडर हैं वो किरणदीप संधू मैम है, जो कि मलेशिया से हैं, और हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर सौमित्र दुबे सर हैं, जिनके डायरेक्शन में, जिनके मार्गदर्शन में हम सभी एक दूसरे से टीम में कोऑपरेशन करते हैं। हमारे तीसरे प्रोजेक्ट का नाम है यूथ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में बताया जाता है। और साथ ही साथ अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट जेल में हमारी डिजिटल लाइब्रेरी भी क्रियान्वयन है, और वहाँ के कैदी जो हैं वहाँ पे पढ़ाई भी करते हैं, और डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से उनको शिक्षा दी जाती है। साथ ही साथ ये वेबिनार सीरीज जिसमें हम आप कनेक्टेड हैं, ये नॉलेज शेयरिंग सीरीज है, और हर महीने की लास्ट फ्राइडे को ये सीरीज जो है वो करवाई जाती है, जिसमें एक्सपर्ट स्पीकर्स को इनवाइट किया जाता है, और जितना भी वो हमें ज्ञान प्रोवाइड करते हैं, जो इनसाइट वैल्यूएबल ज्ञान प्रोवाइड करते हैं, वो हम अपने जीवन में धरातल पे प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। हमारा विश्वास है कि ये शिक्षा किसी भी सोसाइटी का सबसे इम्पोर्टेंट जरिया रहता है। किसी भी एजुकेशन जो है वो किसी भी सोसाइटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है, और टीचिंग सबसे अच्छा प्रोफेशन। एक टीचर को एम्पावर करके हम पूरी जनरेशन को एम्पावर करते हैं। पिछले सेशन में हमने एक्सप्लोर किया था AI एम्पावर्ड टीचर, प्रॉम्प्ट्स के टाइप्स और नोटबुक LM का इंट्रोडक्शन, और उसी को आज आगे की ओर बढ़ाते हुए हम प्रैक्टिकल यूसेज को के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने जो आज इनको हम लोगों ने इनवाइट किया है, शिखा सिंह मैम। उनके बारे में हम लोग कुछ बताना चाहेंगे। Shikha Singh is an AI and coding educator with over 8 years of expertise. She holds a Bachelor of Engineering in Information Science and B.Ed blending technical depth with pedagogical expertise. Shikha specializes in making tech accessible by designing curricula, authoring textbooks, and training teachers across India. Her teaching portfolio includes Python, JavaScript, block coding, SQL, and modern AI platforms. She is deeply committed to empowering educators to bring AI into everyday classrooms. I'm sure this will be a meaningful session and reflective session for all of us. Over to you, Shikha ma'am. Thank you so much, Neela ma'am. So good evening, everyone. I am Shikha Singh, and today we are going to explore Notebook LM further. So in your last session, you learned about the audio feature, like in our Notebook LM. So today we are going to learn few more features of this platform, which is free for everyone. Okay. So let me just share my screen, and we are going to start. And we are going to revise few topics that we have learned in our last session. Okay. So first of all, let's understand why we are using Notebook LM. Okay. So basically Notebook LM is जैसे हम लोग अपना ChatGPT या फिर Gemini हम लोग यूज करते हैं. Okay. So अब Notebook LM में ऐसा क्या डिफरेंट है, right? So Notebook LM actually works only on the data or the content that we give to it. Okay, so let's say we have a chapter. ठीक है, हमारे पास कोई एक चैप्टर है, उसके बारे में हमें पढ़ना है, हमें समझना है, स्टूडेंट्स के लिए नोट्स बनाने हैं, we need to create our lesson plan, we need to create revision notes, flash card, quizzes, बहुत सारी चीजें हमें काम करना होता है, PPTs, right? So अब हमें वो particular content we will upload on Notebook LM, and उसी के related ही हमें सारा content मिल जाएगा.
सो ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा चीज मिलेगी जो हमें नहीं चाहिए थी अपने बच्चों को सेशन में पढ़ाने के लिए या फिर क्लास में बताने के लिए. So first of all this, and the main difference of our normal chatbots and Notebook LM is it does not give you generic answers by searching the whole web. है ना. सो जनरली जब हम नॉर्मल चैट बोर्ड्स यूज करते हैं तो वो ना उस टॉपिक पे पूरा इंटरनेट सर्च करता है और उसमें जो जो उसको लगता है वो आपको दे देता है, जबकि वी नीड टू टीच दैट पर्टिकुलर टॉपिक अकॉर्डिंग टू द क्लासेस, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स. अब कुछ टॉपिक्स है उसके बारे में हम लोग को बच्चों को नहीं बताना है, बट टॉपिक सेम है, वी नीड टू गिव पता कि लिटिल बिट ऑफ पार्ट, राइट. सो वो हमें यहाँ से नहीं मिलता है चैटबॉट, नॉर्मल चैटबॉट से, बट हम नोटबुक में जितना हमें पढ़ाना है उतना ही देंगे, उसी के हिसाब से हमें सारा कंटेंट मिलेगा. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, चैटबॉट्स में जो नॉर्मल जो यूजुअल चैटबॉट्स हम लोग यूज करते हैं, इट कैन मेक अप द फैक्ट्स. अब हम टेक्निकल वर्ड्स में हम उसको ना जैसे कि एआई हेलुसिनेट कर रहा है. सो व्हाट इट डज, इट मेक अप द फैक्ट्स एंड गिव यू कॉन्फिडेंटली कि नहीं ये ही सही है, जबकि वो सही होता नहीं है. तो अगर हम अपना ही कंटेंट देंगे तो हमें पता है कि इससे बाहर तो वो कुछ भी गलत हमें नहीं बता सकता है. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. हमारा जो सेशन होगा सारा हैंड्स ऑन होगा. मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे करके दिखाऊंगी. If you have your laptop and phone ready, yeah, one more very important thing, ये प्लेटफॉर्म आप लोग फोन पर भी यूज कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि इसके लिए लैपटॉप ही आपके पास होना चाहिए. ठीक है, फोन पे भी ये काम करता है, आप लोग ओपन कर सकते हो. So first of all, you will go to the Google search. आपने वहां पे सर्च कर नोटबुक LM. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जीमेल एड्रेस होना चाहिए, बेसिकली जीमेल गूगल लॉगिन होना चाहिए, जीमेल लॉगिन होना चाहिए, बिकॉज नोटबुक LM गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म है जो टीचर्स के लिए उन्होंने बनाया है. ठीक है. इट वाज डेवलप्ड इन 2023, सो इट इज न्यू, इट्स स्टिल, इसमें और भी फीचर्स अभी ऐड हो रहे हैं, तो वो आपको अभी धीरे धीरे पता चलेगा. जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे, फर्स्ट लिंक यू विल गेट लाइक दिस. क्लिक ऑन इट, यू विल let's click on it. Okay, when I clicked on it, you will get this screen. अगर आप लोग साथ में कर सकते हो तो it would be good. ठीक है. We will click on try notebook LM. जब हमने इस पे क्लिक किया तो हमारे पास ये पेज खुल जाएगा. बेसिकली होम है ये हमारा. ओके, होम ऑफ नोटबुक LM. मैंने यहाँ पे बहुत सारी नोटबुक्स पे काम किया हुआ है, सो आई ऑलरेडी हैव दीज नोटबुक्स. बट आपने अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यू विल नॉट हैव एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट न्यू नोटबुक. नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन क्रिएट न्यू नोटबुक, आई हैव दिस, आई जस्ट क्लिक, इसको बंद कर देते हैं. नाउ दिस इज व्हाट यू सी. अब यहाँ पर आपको फर्स्ट विंडो जो मिल रही है, यहाँ पर आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिला है. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नोटबुक LM वर्क्स ऑन द कंटेंट और द जो भी हम अपना चैप्टर है या कुछ भी टॉपिक है उससे ही रिलेटेड करेगा. सो दैट कैन बी डन बाय वेरियस वेज. ठीक है. या तो आप फाइल अपलोड कर सकते हो, फाइल भी अपलोड कर सकते हो. इंटरनेट से अगर आपने कोई लिंक यूज करना, जैसे कि कोई वेब पेज है, ठीक है, आपने सोचो आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने कुछ सर्च किया किसी वेब पेज पर, तो आप उस वेब पेज का लिंक यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो. यूट्यूब वीडियोस का लिंक भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो. ठीक है. यू कैन यूज योर गूगल ड्राइव लिंक्स. अब गूगल ड्राइव पे आपके पास PDF हो सकती है, गूगल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, PPTs हो सकती है. आप डायरेक्टली गूगल ड्राइव लिंक यूज कर सकते हो. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पर जो डिफरेंस लगा है, हमारे चैट GPT और वो जेमिनी सब लोग यूज करते हैं वो आज के टाइम पे ज्यादा, तो सबसे मेन चीज मुझे यहाँ पे क्या लगी है ना, कि ना तो चैट GPT, ना तो जेमिनी, ना तो और कोई चैट बॉट कोई भी गूगल ड्राइव को एक्सेस नहीं कर सकता है ना, क्योंकि हमारा ज्यादातर कंटेंट हम लोग गूगल ड्राइव में सेव कर देते हैं तो वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं. बट यहाँ पे आप कर सकते हो. और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, आपके पास टेक्स्ट है, कंटेंट है, आप यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट भी कर सकते हो, कुछ भी लिखना है तो. ठीक है. सो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अभी डेमो के लिए हम लोग ना फाइल अपलोड कर रहे हैं.
ठीक है। अब कौन कौन सी फाइल अपलोड हो सकती है यहाँ पर, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हर चीज वो हो सकती है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर मैं पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने फाइल अपलोड की है, फोटोसिंथेसिस का डेमो, ठीक है। और आप और भी चीजें यहाँ पर कर सकते हो। और मैं क्या करूँ, मैम प्लीज मैं इंटरप्ट करूंगा। आप सभी लोग अगर मैम के साथ इन फंक्शंस को कर रहे हो और अगर आप पिछड़ रहे हो तो एक रिवीजन, एक रिकैप मैम जल्दी से कर सकते हैं। तो आपको फटाफट बस लिंक पे गूगल पे जा करके सर्च कराना है, और क्योंकि जब साथ होगा देन इट विल बी बेटर। मैम जस्ट प्लीज अगर एक क्विक रिकैप करा दीजिए, देन दे कैन। श्योर। सो मैं क्या करती हूँ, आई विल जस्ट शेयर दिस गूगल नोटबुक LM विद ऑल ऑफ यू इन चैट। आप सब लोग इस लिंक पर क्लिक कर सकते हो, आपको ये वाला पेज मिलेगा। मैं आपको आई कैन नॉट शेयर द फाइल आई गेस, राइट। चलो कोई बात नहीं। सो आपके पास अगर कोई कंटेंट है तो आप उसको अपलोड कर सकते हो, नहीं तो आपको मैंने लिंक शेयर कर दिया है, ये पेज आपको मिलेगा। क्लिक ऑन ट्राई नोटबुक LM। जब आप उस पर क्लिक करोगे ये पेज आएगा। ये वाला जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पर आप सोर्सेज ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैंने अभी एक फाइल अपलोड करके दिखाई है आपको। अब मैं क्या करती हूँ, आप जब तक यहाँ तक आओ तब तक मैं क्या करती हूँ, एक टैब में ओपन करती हूँ और फोटोसिंथेसिस के बारे में कोई एक लिंक ही, हम कोई एक पेज ओपन करके लिंक भी ऐड करती हूँ आपके साथ, ठीक है। सो ये वाला हम कर लेते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक, ठीक है। यहां से हमने यहां से ही लिंक कॉपी कर लेते हैं एंड ये हमारा पेज आ गया। आई होप आप लोग यहां तक आ गए हो। यहां पर मैं सोर्सेज में जा रही हूँ और यहाँ पर ऑप्शन है सर्च द वेब फॉर न्यू सोर्सेज। मुझे नहीं करना, मेरे पास है अभी, ये वाला ऑप्शन हम बाद में करेंगे, ठीक है। हमारे पास है ये, तो मैं क्या करूंगी, ऐड सोर्सेज, ओके। वेब लिंक पे हमने क्लिक किया, पेस्ट द लिंक, इंसर्ट। ये देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन इंसर्ट आ रहा है। अब आप देखोगे ये मेरे पास वेब पेज भी हो गया है यहाँ पर इंसर्ट। ये ऊपर मैंने PDF करी थी, ठीक है। आप लोग डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो, PPT भी अपलोड कर सकते हो, YouTube भी था। चलो हम इतने आप लोग यहाँ तक पहुंचते हो, हम ना YouTube पर भी एक फोटोसिंथेसिस वाला वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला ले लेते हैं। एंड यहाँ पर आप शेयर ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ से कॉपी मिल जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, अगर आपको YouTube चाहिए तो शेयर पर जाओगे, कॉपी द लिंक, कम बैक टू योर नोटबुक, आप यहाँ पर ऐड सोर्सेस पर जाओगे, वेबसाइट YouTube, अपने YouTube का लिंक डाला, इंसर्ट एंड एवरीथिंग कम्स हियर। तो ये आपका कंटेंट है। देखो इंटरनेट से भी आप अगर कुछ ले रहे हो ना, तो वो भी आपको पता है कि कितना मतलब क्या चीज आपने इंटरनेट से दी है, रैंडमली नहीं सर्च कर रहा है, ठीक है। PDF में भी हमें पता है क्या चीज है। अब फायदा क्या हुआ, मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट डाल दिए, मैंने वीडियो भी डाल दिया, लिंक भी डाल दिए, तो फायदा क्या है, मैंने ये सर्च करना पड़ा मुझे। अब अगर आप देखो मैंने ये सब आपके सामने किया है, मैंने ये पेज खोला, मुझे पता है कि वो नेशनल ज्योग्राफिक वाला जो पेज है वो ऑथेंटिक है, तो मैंने उसका कुछ पढ़ा भी नहीं है क्योंकि मुझे मालूम था, ठीक है। और ये भी मैंने वीडियो पूरी नहीं देखी क्योंकि इसका भी मुझे हैप्पी लर्निंग इंग्लिश वाला पेज मुझे मालूम है कि ये अच्छा है, ठीक है। अब मेरा जो टाइम था ये पूरा पेज पढ़ने का, वो पूरी डॉक्यूमेंट पढ़ के समझने की, ये पूरी वीडियो देख के समझने की, वो अब सेव हो गया है। वो मेरा सारा काम करेगा नोटबुक LM। और यहां पर देखो मुझे थोड़ा सा उसने ब्रीफ में मुझे बता दिया है कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स में है क्या, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब लेट्स से यहाँ पे 3 मैंने चीजें डाल रखी है, मुझे ना 3 नहीं, मुझे सिर्फ ये लिंक के जो लिंक मैंने दिया था इसी में से देखना है। सो
अब हम यहाँ पर इससे बात करेंगे, स्टार्ट टाइपिंग में हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर वी विल राइट कि ब्रीफ में अबाउट दिस टॉपिक, इतना करते हैं हमने। अभी छोटा ही हमने इसको दिया है, प्रॉम्प्ट दिया है, तो इसमें हम देखते हैं हमें किस तरीके से आउटपुट देगा। तो देखो, अब ये हमें यहाँ पर फोटोसिंथेसिस इज द वाइटल प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट एल्गे, ये सारा हमारे लिए ब्रीफ में दे दिया है। जहां मुझे पूरा पेज पढ़ना होता, देखो ये वाला पेज कितना बड़ा है, लेट मी जस्ट, एक मिनट मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। इसमें देखो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, और यही चीज मुझे यहाँ पर एज ए नोट्स आ गया। और क्या जरूरी है, C3 फोटोसिंथेसिस, C4 फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर जो हमारे साइंस के टीचर्स हैं और भी मे बी वो आप सबको पता होगा, तो उनको ज्यादा समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें, क्योंकि मुझे कुछ वर्ड्स हैं जो मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं, क्योंकि वो मेरी एक्सपर्टीज यहाँ पर नहीं है साइंस की, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। अब चलो ये तो मेरे लिए हो गया। लेट्स से मुझे ना यही चीज ना एक क्लास 6 के बच्चे को, चलो 6 नहीं, क्लास 4 के बच्चे को समझानी है, ठीक है। अब मुझे तो समझ में आ गया है, मुझे तो ये टेक्निकल वर्ड्स आते हैं, पता चल गया, ठीक है, एज अ टीचर आई नो, बट यही चीज मैं एक 4 क्लास के बच्चे को कैसे समझाऊंगी, उसके लिए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। सो आई कैन राइट हियर कि explain this to a class 4 student, इतना करते हैं अभी के लिए, शॉर्ट अभी हम स्टार्ट करते हैं धीरे से। तो अब आप इसको देखोगे, how it gives us the output. See, imagine plants are like tiny chefs that make their own food. Instead of going to a grocery store, they use process called photosynthesis to cook up energy right inside their leaves. ये मुझे समझ में आ रहा है मतलब कि मैं भी क्लास 4 की हो गई हूँ, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लैंग्वेज डिफरेंट है ना, और प्लस आपको एक तरीका भी मिल गया है टू एक्सप्लेन दिस फोटोसिंथेसिस इन अ सिंपलर वे एंड टू रिलेट इट टू द स्टूडेंट्स। अब जो भी चीज हम बच्चों से रिलेट करके पढ़ाते हैं तो वो ज्यादा समझ में आता है, राइट। तो अब यहाँ पर आपको उस तरीके से पता चल गई सिंपल लैंग्वेज एंड छोटे बच्चों को आप कैसे समझा सकते हैं। देखो छोटा सा ही है। अच्छा, अब हमारे पास एक ना इससे बहुत ही बेटर तरीके से बात करने का ना एक तरीका होता है, ठीक है। लेट मी जस्ट शो यू। रोल, टास्क, ग्रेड, फॉर्मेट, आउटपुट। सो लेट्स से मुझे अब इसका मुझे समझ में आ गया सारी चीजें, क्या पढ़ाना है मुझे पता चल गया, मेरा टाइम बहुत सेव हो गया अब यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, लेसन प्लान बनाना है इस फोटोसिंथेसिस को पढ़ाने के लिए, राइट। अब मुझे इससे मैं नोटबुक एलएम से मैं बनवाऊं कैसे अपना लेसन प्लान। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको ना रोल बताऊंगी। रोल किसको बता रही हूँ, नोटबुक को, मेरा रोल नहीं। आई विल टेल नोटबुक कि एक्ट एज अ टीचर। मैं टीचर को मतलब मैं नोटबुक को कह रही हूँ कि एक्ट एज अ टीचर। अब टीचर एक्ट करके व्हाट इज द टास्क, कि यू नीड टू क्रिएट अ लेसन प्लान। कौन से ग्रेड के लिए, क्रिएट अ लेसन प्लान फॉर ग्रेड 4। फॉर्मेट किस फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्मेट में या फिर जस्ट ऐसे ही आपको कॉलम्स में बनाना है, दैट इज द फॉर्मेट। एंड आउटपुट, व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट यू वांट। आपको उस आउटपुट में वी नीड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेशन, मतलब लेसन प्लान, इंट्रोडक्शन, एक्टिविटी, असेसमेंट, होमवर्क, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको स्लाइड में भी दिख रहा होगा, एक्ट एज एन एक्सपीरियंस्ड साइंस टीचर, क्रिएट अ 40-minute लेसन प्लान। देखो यहाँ पर हमारा कितना लॉन्ग हमारा लेसन प्लान होना चाहिए वो भी हमने स्पेसिफाई करा है ना। एंड कौन सी ग्रेड, किस तरीके से, ये सारी चीजें हम करके देखिए। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ, ठीक है, एक्ट एज एन एक्सपीरियंस्ड साइंस टीचर। यहाँ पर ज्यादातर क्या होता है ना, हम स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, तो एक तो वो ना ऑटो करेक्ट भी हम कर सकते हैं, प्लस ये थोड़ा बहुत समझ जाता है तो उतना चलता है, बट हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है टू गेट अ बेटर आउटपुट। एक्ट एज एन एक्सपीरियंस टीचर एंड क्रिएट अ 30-minute करते हैं हम, 30-minute लॉन्ग लेसन प्लान फॉर क्लास 4
इन अ टैबुलर फॉर्मेट या फॉर्म, जो भी आपको लैंग्वेज यूज करनी है, ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स टॉपिक, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट, और क्या था हम देख लेते हैं यहाँ पर। आपको अगर कोई चैट में आप लिख सकते हो अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो। एक्टिविटी, होमवर्क, एक्टिविटी, होमवर्क, इतना लिखते हैं अभी हम, ठीक है। एंटर। अच्छा, यहाँ पर आते हैं। और एक और बात ध्यान देना, एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, गुड, ओके, एक्सपेरिमेंट्स, exit slip, यू नीड टू राइट इन चैट। हाँ, ओके, आप चैट में लिख दीजिए क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आएगी मुझे किसी की भी बातें। एंड और एक और बात ध्यान रखना, यहां पर आप देखोगे मैंने डाला है 3 सोर्सेज, बट मैं अभी सिर्फ एक ही सोर्स पे काम कर रही हूँ, मतलब इसी से मुझे सारा कंटेंट मिलेगा। एग्जिट स्लिप, ठीक है, बट अगर मुझे ये सारा कंटेंट चाहिए तो मैं सबको भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो लेसन प्लान बनाना है वो किस बेसिस पे, मतलब कौन से कंटेंट के बेसिस पे बनाना है। तो मैं अपना डेमो वाला जो फोटोसिंथेसिस मैंने पीडीएफ डाली उस पे करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग साथ में वो कर रहे हो ट्राई, तो जो जो आपके दिमाग में आ रही हैं चीजें ट्राई करने के लिए, डू इट, आप ट्राई करो और देखो क्या आउटपुट आता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, maybe focus on one, then it will be, yes, absolutely. So मैंने अभी एक ही पे फोकस किया है, डेमो वाली जो पीडीएफ है। अब देखो इस तरीके से मुझे यहाँ पर उसने 30 मिनट्स का लेसन प्लान दे दिया है, बट ऐसा तो नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मुझे एक टेबल में चाहिए था, है ना, मुझे तो मैंने एक्सपेक्ट ऐसा नहीं किया था। सो recreate in a in a table form, ठीक है। अब अपनी बात इसको समझानी भी जरूरी है, किस तरीके से वो समझ रहा है, ठीक है। अगर ये टेबल भी नहीं समझेगा देन वी विल राइट, या ओके समझ गया, जो हमें चाहिए था वो यहाँ पर चीजें हो रही हैं। क्रिएट लेसन प्लान, ओके, एक मिनट मैं फिर से करती हूँ, मैं मेरे जो दिमाग में अभी भी इसने नहीं दिया है, ठीक है। क्रिएट अ 30 मिनट lesson plan for class 4, rows and columns. I would request all the participants to mute your mics, please. ठीक है, अब जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए आप उसको बता सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, असेसमेंट, होमवर्क, वोकैबुलरी भी इसने आपको बता दी है, ठीक है। अच्छा, अभी आपके पास अगर कुछ डाउट्स हैं, आपको कुछ उसमें ऐड करना है तो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो, वो हम यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, add columns, ठीक है। हाँ, मुझे यहाँ पर चैट में कुछ आया है, मैं एक बार देख लेती हूँ। यस, एब्सोल्युटली, यस। अब देखो, अब मुझे ऐसा कुछ चाहिए था, सो नाउ आई गॉट इट लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि ये छोटा टॉपिक है तो इसलिए वो ज्यादा लंबा नहीं कर पाया है उसको, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट, एक्टिविटी, होमवर्क, एक्सपेरिमेंट, हर चीज आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बता दिया है कि फॉर 5 मिनट्स व्हाट यू नीड टू डू, फॉर 10 मिनट्स क्या करना है, 10 मिनट्स, क्योंकि 30 मिनट्स का मैंने लेसन प्लान बनाया था, सो यहाँ पर बता दिया है। हुक्स एंड एग्जिट स्लिप, ओके,
तो रजनी जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि because you can do it in your own yes. chat because we have a limited time. It is already 5:30 and we need to test other Yes. features also. So you Yes. can see how it is working in your notebook column. Yes, ma'am, please. Okay, so this is how we can go with the chat. ठीक है, आप लोग के पास कुछ डाउट्स होंगे तो आप हम लोग वो एंड में करेंगे और नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग उसको कवर कर सकते हैं, कुछ और डाउट्स है तो। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके फीचर्स के पास। ठीक है, सो आज हम यहाँ पे कुछ फीचर्स यहाँ पर देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू द इंफोग्राफिक। अब इंफोग्राफिक का क्या है, ये बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको इन अ पिक्चर पूरा बना देगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पर अभी जस्ट नॉर्मल इंफोग्राफिक पे क्लिक कर रही हूँ और यहां पर आप नीचे देखोगे इट स्टार्टेड जनरेटिंग इंफोग्राफिक फॉर मी। ठीक है, और ये भी किस डॉक्यूमेंट के बेस पर बना रहा है, जो मेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो मैंने सिलेक्ट की हुई है यहाँ पर। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। इंफोग्राफिक अभी लिमिटेड टाइम्स के लिए, मतलब कुछ नंबर ऑफ टाइम्स है, 2 या 3 ही बार हम यहाँ पर एक पिक्चर बना सकते हैं एक नोटबुक में। ठीक है, अब यहाँ पर ये बन रही है पिक्चर। सो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ जो मैंने पहले से एक बनाई हुई है पिक्चर्स ना, क्योंकि इसमें टाइम लगाता है, थोड़ा सा वो टाइम लगाता है पिक्चर बनाने के लिए। ओके, सो लेट मी जस्ट शो यू। एक मिनट, सो ये मैंने सेम टॉपिक पे पिक्चर बनाई थी। इट इज गेटिंग लोडेड, जस्ट गिव इट फ्यू सेकेंड्स। ओके, हम यहाँ पर वेट करते हैं इतने जब तक ये बन रहा है। इट शुड अपलोड। चलो ठीक है, ओके, जब तक हमारा यहाँ पर पिक्चर क्रिएट हो रहा है तब तक लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर टॉपिक। ठीक है, वन मोर थिंग, दैट इज यू कैन, एक मिनट, you can share your notebook with your fellow teachers as well. अब इस नोटबुक में मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, अगर मेरे साथ ही इसी टॉपिक पे और भी कोई काम करना चाहता है, आई विल क्लिक ऑन शेयर। ठीक है, यहां पर आपके पास शेयर आ जाएगा। आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। यहाँ पर आप अपने किसी भी कलीग का वो ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। एज अ व्यूअर, एज अ एडिटर, जो भी चीजें आप कर सकते हो। एंड क्लिक ऑन कॉपी लिंक, सेव कर दोगे और जिसके पास भी ये लिंक जाएगा, अकॉर्डिंग टू योर एक्सेस, आपने कैसा एक्सेस दिया है उसी तरीके से उनके पास एक्सेस चला जाएगा और वो लोग आपकी नोटबुक देख सकते हैं। अब ये हमारा बन गया है इंफोग्राफिक पिक्चर अकॉर्डिंग टू द कंटेंट दैट वी गेव इट टू वर्क फ्रॉम। ये देखिए, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर देती हूँ। मैं एक मिनट, ये देखिए, ठीक है, ये हमारी पिक्चर है और इस पिक्चर में सारी चीज एक्सप्लेन हो गई है, आप देख सकते हो। नाउ अब ये पिक्चर आप लिंक्स के साथ शेयर कर सकते हो या फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो एंड यूज इट इन योर क्लास, इन योर पीपीटी, जिस भी तरीके से आपको यूज करनी है। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर के साथ सारी चीजें आपको मिल गई हैं। ओके, सो अब ये तो हो गया था जनरल पूरा पिक्चर। ठीक है, अगर आपको थोड़ा स्पेसिफिकली किसी पार्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है या फिर पिक्चर बनानी है तो देखो, अब यहाँ पर आगे कुछ वो ऑप्शंस जिसको आपको यूज करना है। आपको इमेज किस टाइप की चाहिए, ठीक है, वो तो डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट उन्होंने यूज कर लिया था। अगर आपको कुछ स्पेसिफिकली कोई इस टाइप की चाहिए, मैं अभी ये कर देती हूँ, स्क्वायर शेप, पोर्ट्रेट, आपकी मर्जी है, मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ। और स्टैंडर्ड या डिटेल्ड में कुछ ज्यादा ही डिटेल वाली चीजें उसमें आ जाएंगी टू एक्सप्लेन। कंसाइज में थोड़ी कम चीजें होंगी, स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत है कंटेंट एक्सप्लेन करने के लिए, जो आपको दिख रहा है वो आप
प्रैक्टिस करोगे, देखना, जब आप खुद करोगे ना तब आपको सारी चीजें डिफरेंसेस उसमें पता चलेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू कि किस तरीके से ये सारी चीजें यूज करनी है। सो मुझे क्या करना है, इसमें कोई भी एक छोटा टॉपिक चाहिए, मुझे होल डॉक्यूमेंट का नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ एक छोटा कुछ टॉपिक चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, एक्सप्लेन अबाउट यूज ऑफ सनलाइट, ऐसे कुछ लिख देते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको जनरेट करती हूँ, मैंने थोड़ी बहुत चीजें इसमें चेंज कर दी और लेट्स सी कि ये हमें क्या आउटपुट देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से अपना इमेजेस भी इसमें क्रिएट कर सकते हो। जब तक वो क्रिएट होता है, लेट्स गो अहेड एंड एक्सप्लोर अनदर फीचर दैट इज क्विज। अब हम सब बना रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें हमने पढ़ा दी है, सब चीज हो गया है। अब क्विजेस बच्चों को रिवीजन के लिए थोड़ा समझ में, हम लोग तो क्विजेस उसमें यूज करते हैं। अब इसमें भी हमारे पास फीचर्स होते हैं कि किस तरीके से आपको क्विज बनाना है, ठीक है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा डेमो भी दिया है कि आप किस तरीके से अपने तरीके से यहाँ पर क्विजेस के लिए इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, ठीक है। सो आई एम राइटिंग हियर कि क्रिएट 10 क्विज क्वेश्चंस, ओके, बस इतना ही करते हैं, मुझे 10 चाहिए, ओके। एंड मीडियम डिफिकल्टी लेवल में मीडियम ही रख रही हूँ और कुछ मुझे चेंजेस नहीं करने हैं, तो मैं जनरेट कर रही हूँ, ठीक है। सो अब मेरा यहाँ पर क्विज भी जनरेट होना स्टार्ट हो गया। आप देख रहे हो 2-3 चीजें मेरी साथ में चल रही हैं, जहां मुझे यही काम करने के लिए कम से कम 20 मिनट तो लगता है, राइट। सोचती, टाइप करती, सेव करती, ऑल दोज थिंग्स वी विल गेट इट फ्रॉम हियर, ओके। सो यहाँ पर ये जनरेट हो रहा है आपके लिए, और अगर आप यहाँ पे नॉर्मल क्विज पे ही क्लिक कर दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट अपने तरीके से जो भी 50 क्विजेस बनाएगा, अपने तरीके से डॉक्यूमेंट पे सारे क्विजेस आपके लिए क्रिएट कर देगा, ठीक है। देखो, अब हमने पहले पिक्चर बनाई हुई थी ना स्पेसिफिक, तो अब देखते हैं इसने हमें क्या पिक्चर दी है। हमने देखो चेंज हो गया ना, अब पिक्चर का जो टाइप था वो चेंज हो गया। मैंने उसमें चेंज किया था, जब मैं इसको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी मैंने चेंज किया था। प्लस सनलाइट के बारे में कहा था कि मुझे सनलाइट, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का क्या यूज होता है। तो देखो सनलाइट स्वीट मैजिक, तो यहाँ पर मेनली जो काम कर रहा है सनलाइट के बारे में चीजें हो रही है, मतलब एक्सप्लेनेशन हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो। So, अब जो हमने 2 पिक्चर अभी क्रिएट करी थी उनमें आप डिफरेंस भी देख सकते हो, मतलब क्रिएशन में ये थोड़ी क्यूट सी होगी, पिछली वाली थोड़ी नॉर्मल थी पढ़ाने के लिए, ओके। अब हम अपना क्विज भी देख लेते हैं, फोटोसिंथेसिस क्विज। ये आ गया हमारा क्विज। क्वेश्चन, मैं यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर देती हूँ विंडो। क्वेश्चन, हियर वी हैव ऑप्शंस, हिंट भी है, एंड वी कैन जस्ट सेलेक्ट द ऑप्शन, ठीक है। अब ये राइट था तो इसलिए दैट्स राइट मुझे आ गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन भी है, ये वाला क्वेश्चन है, हिंट चाहिए तो आप हिंट भी ले सकते हो, मैं यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन कर, तो ये गलत है, इसने मुझे गलत बता दिया। अब थोड़े सा यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, हम देख लेते हैं। इस पर जब हम क्लिक करें, अगर हमें कोई क्वेश्चन डिलीट करने हैं हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ पर इसको एक्सपैंड कर देती हूँ। इसको अब हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। हियर वी हैव ऑप्शन टू शेयर, हम यहाँ पर शेयर करेंगे, ठीक है। लेट मी शेयर इट विद, मैं अपने एक दूसरे आईडी से अगर शेयर, चलो छोड़ो, मैं क्या करती हूँ, एवरीवन, ओके, कॉपी लिंक एंड सेव, और मैं न्यू टैब में इसको आपको ओपन करके दिखा देती हूँ किस तरीके से ओपन होगा। तो ये हो गया, ये मैंने शेयर किया, तो दिस इज हाउ आई विल सी दिस। मतलब अगर मैंने ये शेयर सौमित्रा सर के साथ मैंने ये क्विज शेयर किया है तो सर को इस तरीके से दिखेगा, तो ये इसको यूज कर सकते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी नोटबुक एलएम की चीजें हम शेयर कर रहे हैं जिसके भी साथ, उसका नोटबुक एलएम में अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो उस पर होना चाहिए तभी ओपन होगा। अगर मैं यूं ही दे देती हूँ और उसके पास जीमेल एड्रेस है बट नोटबुक एलएम उसने यूज नहीं किया या अकाउंट नहीं बनाया, तो उसके लिए वो एक्सेसिबल नहीं होगा। नोटबुक एलएम क्रिएट उस वाले बंदे का उसमें
अकाउंट क्रिएट होना चाहिए। अब यहाँ पर हम उसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम बच्चों के साथ कैसे यूज करें, ठीक है। या तो हम इसी तरीके से बच्चों के साथ लिंक शेयर कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि नोटबुक एलएम में अकाउंट क्रिएट करो, तो वो थोड़ा लंबा हो जाता है। बट दिस वी कैन यूज ऑन आर लाइक अपनी ऑनलाइन क्लासेस में, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, स्कूल में ही स्मार्ट बोर्ड है, या फिर थोड़ा चेंज करने के लिए, रिवीजन के लिए हम लोग लैब में चले गए, तो वहां पर आप स्क्रीन पर दिखाकर यू कैन गाइड, जिस भी तरीके से आपको क्लास में करना है, बच्चों को लाकर मतलब कि 1 by 1 बुला के उनसे आप इसमें ऑप्शंस आप पूछ सकते हो, सिलेक्ट करवा सकते हो, खुद कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज क्विज़ेस। लाइक अभी के लिए इतना ही यहाँ पर है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो ये डाउनलोड होगी इन एन एक्सेल फॉर्मेट। क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके पास आ सकते हैं, ऑप्शंस, ठीक है। One more feature we are going to explore is flashcard. Okay, flashcard पे भी अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कुछ रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैं अभी के लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं डाल रही हूँ, मैं यहाँ पर नॉर्मल डालती हूँ। मैं यहाँ पर ना 5 फ्लैश कार्ड कर देती हूँ, क्योंकि ज्यादा बनाने में टाइम लगाएगा। 5 फ्लैश कार्ड्स, ठीक है। लेट्स डू दैट एंड generate. So now it is generating, started generating flashcards. हम यहाँ पर जितने वो अपना फ्लैश कार्ड जनरेट होता है, we will just see. अच्छा, ये क्विज यहाँ पर जनरेट तो हुआ है, हमने देख लिया। अगर हमें क्विज क्वेश्चंस वैसे चाहिए अपनी चैट में भी हम इसको बोल सकते हैं कि क्रिएट 5 MCQ ऑफ इजी लेवल कर देते हैं, ठीक है, विद आंसर्स इन द एंड। अब यहां से क्या होगा, ये जो चैट में मैंने दिया है, यहाँ पे जो भी मुझे क्विज़ेस एमसीक्यूज मिलेंगे, आई विल जस्ट कॉपी दैट एंड आई कैन पेस्ट दैट इन माय डॉक्यूमेंट, या जहां भी मुझे इसको यूज करना है आई कैन डू दैट। चलो, हमारे पास फ्लैश कार्ड का काम हो गया है। वी आर क्लिकिंग ऑन फ्लैश कार्ड। देखो यहाँ पर हमारे क्विज के क्वेश्चंस भी आ गए, ठीक है, और लास्ट में मुझे आंसर्स मिल गए हैं। तो मैं इसको कॉपी कर सकती हूँ पूरा का पूरा, ठीक है, एंड जहां जिस भी तरीके से मुझे इसको यूज करना है, आई कैन यूज इट। नाउ लेट्स सी फ्लैश कार्ड्स। ये हो गए हमारे फ्लैश कार्ड्स। इसको भी मैं थोड़ा ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। अब व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल। अब ये चीजें ना हम यूज कर सकते हैं इन रिवीजन। जैसे हमने कुछ अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया या फिर एग्जाम्स आ रहे हैं, तो ये कुछ हम रिवीजन इस डिफरेंट टाइप से करते हैं, तो बच्चों को थोड़ा बहुत ज्यादा याद रहेगा। तो फ्लैश कार्ड्स हम ऐसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर है व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप बच्चों से पूछ सकते हो, सी आंसर, ये हमारा आंसर। तो हमें ज्यादा उनको लिखने की भी जरूरत नहीं है। एंड एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेनेशन वो हो जाएगा कि आप क्या एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। करेक्ट है तो यस, रॉन्ग है तो रॉन्ग, हम फिर नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन हो गया काम, तो हम आगे जाएंगे। इस तरीके से हम फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हैं। इसको भी सेम तरीके से, फ्लैश कार्ड को भी हम इसी तरीके से शेयर कर सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज योर फ्लैश कार्ड इन क्लास। तो यहाँ पे सिर्फ फ्लैश कार्ड्स हैं, आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। रीस्टार्ट कर सकते हो, शफल कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। इसको हम डाउनलोड करते हैं और ये हमारा डाउनलोड हुआ है एक्सेल शीट में। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक्सेल फॉर्मेट में, ठीक है, जिसमें हमारे पास फ्लैश कार्ड का क्वेश्चन है, उसका आंसर है। आई थिंक यू कैन नॉट सी दैट, शेयर स्क्रीन में नहीं आ रहा है, बट ठीक है, यहाँ पर आप जब खुद ट्राई करोगे आपको पता चल जाएगा। हमने फ्लैश कार्ड कर लिया है। लेट मी जस्ट सी, यस, ओके। नाउ अनदर फीचर दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर टुडे इज रिपोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं, इस एरो पर क्लिक करके थोड़ा सा डिटेल हमें यहाँ पर पता चलेगी, ठीक है। हम यहाँ पर क्या क्या और किस तरीके की चीजें क्रिएट कर सकते हैं।
We can create notes for the students to share. We can create revision notes. ठीक है, कीवर्ड्स या की डेफिनेशन जो इसमें होनी चाहिए वो हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं. ब्लॉग पोस्ट, एनवायरमेंट, मतलब यहाँ पर आपको सारी चीजें दिख गई है किस फॉर्मेट में हमें क्या चीज चाहिए. ठीक है, जब आप एक्सप्लोर करोगे, जब आप खुद से करोगे, आप सारी चीजें यहाँ पर ट्राई करना, आपको पता चल जाएगा. ठीक है, सो मैं एक ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट बना रही हूँ. ठीक है, मुझे जो भी मेरा ये वाली फाइल थी जिसपे मैंने काम किया है, सो वो बस ब्रीफ में मुझे रिपोर्ट पता चल जाए कि ब्रीफ क्या है उसका. ठीक है, सो दैट इज गेटिंग जनरेटेड हियर एंड ये आ गया हमारा ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर सारी आपकी समरी आ गई है. तो ये नोट्स आपके लिए भी हो गया पूरा, तो आप बच्चों को इजीली समझा सकते हो, या बेसिकली आपके पास अपने कंस्ट्रक्टेड एक फॉर्मेट में सारा कंटेंट आ गया है, तो आप को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ये सारा कंटेंट क्रिएट करने के लिए. एंड यू कैन शेयर दिस विद योर स्टूडेंट्स एज वेल. ठीक है, लिंक से शेयर कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया है, कॉपी पूरा कर सकते हो, एंड यू कैन एक्सपोर्ट एज वेल. ठीक है, एक्सपोर्ट टू डॉक्स मैं यहाँ पे कर देती हूँ. मैंने इसको डॉक्यूमेंट में एक्सपोर्ट हो गया, देखो आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, ये रही मेरी डॉक्यूमेंट. तो ये सारा कंटेंट एज अ डॉक मुझे एक्सपोर्ट हो गया है. ठीक है, रिपोर्ट्स में जो भी आप कंटेंट करते हो वो एक्सपोर्ट हो सकता है आसानी से. और अगर ये चीज आपको एज शीट, एक्सेल शीट एक्सपोर्ट करनी है, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, तो एक्सेल शीट में हमारे पास ये चीजें एक्सपोर्ट हो गई है. ओके, एंड वन मोर थिंग वी कैन डू, आई विल जस्ट शो यू. देखो यहां पर आपको दिख रहा है एड नोट. हम इस एड नोट पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ अपने लिए नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं. अगर मुझे कुछ अपने लिए नोट करना है या कुछ दिमाग में आया तो हम यहाँ पर अपने नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं. बट ये वाले नोट्स हमें स्टूडियो मतलब यहाँ पर हमें मिल जाएंगे. देखो मैंने तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, मैं बस यहाँ पे नोट्स लिख देती हूँ फॉर नाउ. ठीक है, और अगर मुझे अपने नोट्स यहाँ पे कुछ देखने हैं तो यहाँ पर देखो उसको ओपन करूंगी, नोट्स आ गया. और मैं डेफिनेशन या कुछ भी करना है तो माय नोट्स लिख सकती हूँ, या जो भी आपका टॉपिक है आप ये सब आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो आराम से. ठीक है, ओके, सो लेट अब देखो ये है ना हमारा सारा कंटेंट. में इसको सेव टू नोट भी कर सकती हूँ. जो मैंने यहाँ पे किया है ये मुझे सारा नोट्स में सेव करना है. आई कैन क्लिक ऑन सेव नोट, चैट में ही आ गया है सेव नोट, और ये मेरा नोट्स में क्रिएट हो गया है. और इस नोट को जो मैंने नोट्स बनाए, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. ठीक है, जो मैंने चैट में काम करा है और मुझे इसका नोट्स बनाने हैं, मैंने सेव नोट्स किया, यहां पर मेरा यही कंटेंट एज नोट्स सेव हो गया है. ठीक है, आप देख सकते हो. अब इसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ, कन्वर्ट टू सोर्स, मतलब कि आपको दिखा देती हूँ सारी चीजें. ये वाला थोड़ा पार्ट आप ध्यान देना क्योंकि ये आपके लिए इजी हो जाएगा कॉपी पेस्ट से बेटर. यहां पर ये मेरा सोर्स है इधर, तो मैं इसको एज अ सोर्स भी डाल सकती हूँ, कन्वर्ट टू सोर्स. तो ये अब सारा चला गया मेरे सोर्स में. ठीक है, मैं इसको कन्वर्ट टू डॉक भी कर सकती हूँ, एक्सपोर्ट टू डॉक. तो सेम जो मेरा नोट्स जो मैंने अभी नोट्स बनाया वो अब डॉक्यूमेंट भी बन गया है. और यही चीज मैं अपना लेसन प्लान जो मैंने टेबुलर बनाया था वो भी मैं कर सकती हूँ. एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सेल शीट में करना है वो कर सकते हो, कन्वर्ट ऑल नोट टू सोर्स वो भी कर सकते हो, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो. सो दीज आर द ऑप्शंस वी कैन गेट फ्रॉम आवर नोट्स. So these are the topics that we had to do today. So मैं एक बार क्विक रिकैप कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीजें एक बार रिवाइज हो जाएं. ठीक है, नोटबुक एलएम में सारी चीजें हम लोग को यस अभी हमारे पास और भी फीचर्स बचे हैं दैट वी कैन लर्न इन आवर नेक्स्ट सेशन, क्योंकि अभी हमारे पास लिमिटेड टाइम है. ओके, सो लेट मी क्विकली रिवाइज ऑल द थिंग्स दैट वी लर्न टुडे इन द सेशन.
हमें जो भी चीज पढ़ानी है या जिस भी चीज के बारे में हमें काम करना है, वी नीड टू अपलोड इट. अपलोड हम डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, वेबसाइट लिंक, यूट्यूब लिंक, एवरीथिंग वी कैन यूज हियर एज अ सोर्स. मल्टीपल सोर्सेज हम कर सकते हैं. हमारे पास यहाँ पर चैट है. जब हम चैट में ब्रीफ कर सकते हैं बच्चों के लिए, उनके लेवल का वही टॉपिक समझाने के लिए हम अच्छे से प्रॉम्प्ट दे सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्लासेस इट कैन एक्सप्लेन द सेम टॉपिक like differently with examples. It can create lesson plan, it can create notes for the students, it can create the briefing note for parents as well. कि कई जगह ना पेरेंट्स को भी हमें मैसेज भेजने होते हैं, नहीं पिक्चर्स हम नहीं अपलोड कर सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेनेशन हम उसमें देखेंगे. ठीक है, पेरेंट को भी हमें कई जगह बताना होता है कि व्हाट वी हैव कवर्ड टुडेज सेशन, राइट. सो वो भी हम इससे आराम से पेरेंट्स नोट्स भी हम यहाँ पर क्रिएट करवा सकते हैं. वी कैन क्रिएट इन्फोग्राफिक, मतलब कि पिक्चर से हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों को, थोड़ा वो ज्यादा एक्सप्लेनेशन बच्चों को याद रहता है, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं. क्विज बना सकते हैं चैट से भी, और यहाँ पर हमारे पास फीचर है वहां पर भी. वी कैन क्रिएट द फ्लैश कार्ड्स फॉर द स्टूडेंट्स. वी कैन क्रिएट रिपोर्ट. अब रिपोर्ट में बहुत सारी तरीके की चीजें आ जाती हैं, आपको हर एक फीचर एक्सप्लेन करना, आप खुद उसको करके देख लेना. ठीक है. एंड ठीक है, yes, we can use Google documents as well in our sources. आप लेसन प्लान बना सकते हो, क्विजेस बना सकते हो, एंड स्पेशल पूरा जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें से कुछ स्पेशल कीवर्ड्स जो स्टूडेंट्स को डेफिनेशन के साथ पता होने चाहिए, वो भी आप इसी से निकलवा सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्लासेस. ओके, सो that's all for the today's session. आज हमें इतने ही features करने थे. Thank you, ma'am. Thank you, Sikha, ma'am. This was a wonderful session. Now, because we have 9 minutes, so before going to Q&A, I just want to add one simple thing to put everything in perspective. Why हम लोग क्यों notebook LM पे इतना emphasize कर रहे हैं? So notebook LM पे emphasize करने का simple है कि Google का जो emphasis है notebook LM पे, वो as a learning and teaching tools बहुत ज़्यादा है. Same work we can do with ChatGPT and even Gemini, but it will take a lot of efforts from our side, right? And the second thing is that what is the challenge of the teachers today? हमारा challenge है कि हमें स्कूल में different learning ability, different learning needs के बच्चे मिलते हैं और उनको as a teacher हमें teach करना होता है. तो वहां पर हमारे पास कुछ learning moments होते हैं. हर क्लास में 30 मिनट्स के क्लास में हमारे पास अलग अलग बच्चों के लिए 2 मिनट्स 3 मिनट्स की वो विंडो आती है जहाँ पे बच्चों का अटेंशन होता है और तुरंत ग्रैब कर लेता है. When you are having so many things, flashcard, infographics, you are having podcast, very very powerful podcast. I request all of you to please try podcast. Video is there, mind map, very very useful. If these things are there और वो आप बना करके अपने lesson plan में include कर सकते हो, so it will make your work very very easy. You know why? Because then आप पूरा टाइम अपना फोकस कहाँ कर सकते हो? आप अपना पूरा टाइम फोकस कर सकते हो इन टूल्स को क्रिएटिवली यूज करने में टू गेट व्हाट इज द लर्निंग आउटकम यू वांट, राइट? आपको ये क्रिएट नहीं करना है, ये क्रिएट हो गया है, बट स्टिल मैजिक इज इन योर हैंड कि इनको यूज कैसे करना है क्लास में. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द नोटबुक एलएम. विद दैट अगर आप ChatGPT यूज कर रहे हो, Gemini यूज कर रहे हो, यो फ्री वर्जन यूज कर रहे हो, देन आपका लिमिट बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाएगा. बट नोटबुक एलएम में आपके 50 रिसोर्सेज, बहुत है 50 रिसोर्सेज, वो फ्री है. यानी आप 50 सोर्सेज इसके अंदर अपलोड कर सकते हो. तो इट्स अ वेरी गुड. I think it's almost free. You can do anything. Yes, you can upload photos also. You can put the photo in the document, and as a document you can upload that. It will take photos also, right? तो source में अगर आप document पूरा कर रहे हो, तो अगर document में आपने कोई photo भी डाली है रजनीश जी, तो it will take, right? So I think there's nothing that you cannot do.
You can do everything, and it is evolving. The platform is evolving. Every next week you'll see new features are coming. So that is why हम लोगों ने notebook LM पे इतना emphasize किया है. And this is something that will definitely आपकी teaching and learning both को ये बहुत ही easy करने वाला है. So please try your hand with it. So many things is being covered by ma'am very precisely. And I think when you play with it, only then you will know कि किसको किस तरीके से use करना है. Right? So thank you very much, ma'am. Floor is open for the Q&A. Please raise your hand. या अपने आप questions chat में डाल सकते हो. Thank you, Rajnish ji. Any question, any doubt, anything that you want to, कहीं पे clarification चाहिए, you can ask. Right. Okay, anyone who was in the previous session and this session also? कोई ऐसा व्यक्ति जो previous session में भी था और इसमें भी था, and are you able to relate between both of them? Because every individual is different. Surya was different, and Sikha ma'am is different. They are, teaching same thing in a different way. So you can relate, you can share your experience. Yes, sir. I have attended both the sessions, but what ma'am has taken, she has given the demo, and we were trying to do. So it was hands-on learning, but Yeah. in the previous sessions, it was not there. Right. It was the I best agree with part, and we will try again. If we will stuck somewhere, so we will just discuss in the next session. Yeah, the same thing you can do with Surya taught you. If you stuck somewhere, use Gemini. Yeah, use another window of notebook LM also. आप उसी का help लेकर के अपने problem को solve भी कर सकते हो. You need not to wait for 1 month, right? Okay, fine. And Thank you. you can even put the your questions in the growth hub also. We'll try to respond to you, right? Fine. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Ravinder ma'am, you are from JPA? From Balsadan, sir. Balsadan, right. Thank you. Anyone else? If you want to share your observation, anything, any improvement, any feedback, please share. Okay. So till that it is coming, I request Anshu to please I think I would just like to thank Mrs. Shikha that it was a wonderful session, and I'm sure it's going to be very helpful to all of us. It was really good. Thank you so much. Sumitra ji, thank you so much for making this possible. Yeah, ma'am. Please. So before ending, I want to mention कि I think ma'am के पीछे भी आप देख रहे हो. It is core online education. So this whole session is being assisted by Pushpinder Kaur ma'am. She is also there. Thank you for giving your time, ma'am. She was the one who linked us with Shikha ma'am, and she's this core online education is helping Super 60 project in many different ways. So I think we all clap for core online education and for Pushpinder ma'am and also for Shikha ma'am. Anshu, please share the certificate. So you all can join the WhatsApp group and you fill the form. Your certificate will be available in the within a 1 week time. So thank you very much, Shikha ma'am. I think you all participant, please clap for Shikha ma'am for this wonderful session. We are looking forward, ma'am, for such type of session in future also. In today's time when AI has become so important, the clarity and just giving hand holding of the teachers is very, very important, so that with confidence they can use these platforms for the betterment of their students and their own learning. Thank you very much, ma'am. Yes, absolutely. Thank you so much for having me here. And I really enjoyed teaching this platform here. Yes, so we are going to meet in next session as well. Thank you so much for having me. Right. So with that, I thank you all for joining here. Thank you, Neelam ma'am. Thank you, Anshu. All the volunteers of GBTC Trust.